Assalamu alaikum, dear students. But I hope all of you are doing fine. Last week we did some rules of report writing, and this week we'll be moving towards our next topic, that is critical reading skills. I have already sent you the handouts of this particular topic. I hope you have gone through them once. हाँ जी जी तो we will be moving now. बेटा all of you are online, बट मैं आप लोगों को म्यूट करती हूँ, बट आप खुद भी अपने आप को म्यूट रखा करें और वीडियोस अपनी प्लीज बंद रखें. जिस चीज़ की वीडियो ऑन है प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो एंड कीप योरसेल्फ म्यूट. अली हसन, बेटा अपनी वीडियो बंद करें. Okay, so our today's topic is critical reading. What is critical reading? I have given you the handouts. ठीक है, handouts मैंने दिए हैं. There are five particular you can say chapters in these handouts. Very firstly, there will be introduction to critical reading. Number two would be about the critical reading strategies that would help you to develop your reading skills. Number three and fourth would be critical reading steps and strategies. ठीक है, and number fifth would be it would guide students to read academic text critically. ठीक है, ये इसमें फाइव जो है इसमें particular chapters हैं which are going to be helpful for you in understanding what is critical reading. Okay, critical reading, when we talk about this particular word, there are two words in it, critical and reading. Mostly what we think about critical is that being judgmental or using flaws or finding out flaws in some particular person or piece of text. क्या होता है कि हम समझते हैं critical होना क्या है, कि किसी की खामी को ढूंढा जाए, किसी की जो है कोई ऐसी बात जो कि नेगेटिव हो उसको पॉइंट आउट किया जाए, तो उसको बीइंग क्रिटिकल कहते हैं. नहीं, जब आप लिटरेचर को जो है उसके किसी पीस ऑफ टेक्स्ट की क्रिटिकल रीडिंग करते हैं, तो उसमें ये नहीं होता कि आपने उसके फ्लॉज को ढूंढना है या उसको हाईलाइट करना है. क्रिटिकल रीडिंग कुछ और चीज़ है. आप कुछ और क्रिटिकली जब आप सोचते हैं किसी के बारे में. बेटा प्लीज म्यूट योर सेल्फ. आपने मारिया असलम अपने आप को म्यूट रखें. मैं आप लोगों को बार बार म्यूट करती हूँ, लेकिन समटाइम्स यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड दैट कॉजेज डिस्ट्रप्शन. ओके, मारिया प्लीज म्यूट योरसेल्फ. मारिया असलम. ओके, let's move towards the topic back again. So, what is critical reading? Before going into the definition of critical reading, I want to give you an example. I have sent you the handouts. When आपको handouts दिए हैं, open page number 4 over here. Introduction to critical reading. Page number 4 आप देखेंगे जब इसमें. तो suppose the email below were sent to you. कि आपको ये email जो है भेजी गई है. email क्या है? I'm reading out for you. Hello, if you are looking for a way to make something on the side, you should know that people like you are already doing it. Daniel made over $5,000 in his first month. Kara scored over $15,000 in just 1 week. How much do you think you can make? Find out here. And don't forget to fill your data to access full details on how to start earning extra every week. Best of luck from Options Expo team. अच्छा,
ये देखिए ये एक ईमेल है। इस तरह की ईमेल्स जो है अक्सर आप लोगों को आती हैं इन योर मेल बॉक्स, और समटाइम्स यू गेट मैसेजेस एज वेल, आपको मैसेजेस आते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा इन पाकिस्तान देयर इज़ अ ट्रेंड दैट दे सेंड यू फेक मैसेजेस, और स्पैम होता है उसमें। एंड उसमें आपको कहा जाता है कि अपना एंटर करें, आप डाटा अपना अकाउंट नंबर जो है एंटर करें, तो आपको जो है इतने ये प्राइस मिलेगा इस तरह से। ये भी उसी तरह की एक ईमेल है, ठीक है। आप सपोज करें कि आपको इस तरह की एक ईमेल मिली है, और आपको उस ईमेल में ये बताया गया है कि कोई शख्स जो है वो उन्होंने हमारे साथ काम किया, तो उन्होंने क्या था, उसने वो $5000 जो है वो मंथ की कमा रहा है, और किसी ने $1500 जो है वो बनाए हैं। तो उन्होंने कहा किस तरह से, और एक लिंक दिया होता है कि इसको क्लिक करके खोलेंगे आपको पता चलेगा कि हाउ कैन यू अर्न दिस मच। तो साथ ही उन्होंने कहा है कि आपने अपना डाटा जो है वो फिल करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें एवरी वीक। अब जब ये ईमेल इस तरह की आती है, कि स्पैम ईमेल आती है जिसमें इस तरह का लिंक दिया गया हो कि यू हैव टू क्लिक दिस, ठीक है, और आप सोचते हैं, फिर आप क्या फ़ौरन से यू गो इन टू द डीप थॉट्स कि शुड यू ओपन दिस लिंक और नॉट, कि ये लिंक जो है सही है कि नहीं है। क्या अगर आप इसको ओपन करके खोलेंगे, हो सकता है आपकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज जो हैं वो ख़त्म हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपके हाइपर लिंक खोलें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए। आप मतलब हर तरह से सोचते हैं फ़ौरन से कि इस लिंक को खोल के मेरे लिए कुछ बेहतर होगा या नहीं होगा। आप अपने आप से ये भी पूछेंगे कि वाक़ई ये जो लोग हैं, ये वाक़ई रियल हैं जिन्होंने बताए हैं कि जो $5000 और $1500 पर वीक अर्न कर रहे हैं, और जो तरीक़ाकार ये अर्निंग का है, क्या ये सही है, मतलब कानूनी तौर पर सही है, एथिकल है या नहीं? इसमें कोई रिस्क तो नहीं है अगर मैं इसको अडॉप्ट करूँ जो ये कह रहे हैं? क्या वाक़ई ही मुझे ये रिच करेंगे, अमीर बना देंगे? क्या मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर लेंगे तो मेरे लिए कोई मसला तो नहीं होगा? आप इस तरह के क्वेश्चन ही रेज़ करते हैं अपने आप से, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग एंड रेजिंग क्रिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है? आपको सामने एक चीज़ आई, आपने उसके बारे में क्रिटिकली सोचा। When you think about something critically, you raise some critical questions. That is called critical thinking. इसमें आपने अभी फिलहाल you haven't come to any judgment or point. आप ये नहीं कहेंगे कि this is अ फेक ईमेल, या फिर आई डोंट नो इसमें मतलब क्या हो आपके लिए। अभी आप सिर्फ सोच रहे हैं कि व्हाट वुड बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस ईमेल, कि अगर आप इसमें खोलते हैं तो वाकई आप पैसे आप उससे कुछ अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप क्रिटिकली डिफरेंट क्वेश्चंस रेज करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। आपने जो है देखना है कि व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ द राइटर, कि जिस राइटर ने ये ईमेल आपको लिख के भेजी है, व्हाट इज हिज पर्पस, उसका पर्पस क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, और उसकी हिडन इंटेंशंस क्या है। एक तो होता है ना अपेरेंट इंटेंशन, जो आपको नजर आ रही होती है, जो उसने लिखा है उसमें। दूसरी होती है हिडन, कि वो हिडन इंटेंशन उसकी क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट डज ही वांट। आपने समय वो देखना होता है। तो यही चीज हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। यानी कि टेक्स्ट मीन्स के जो एकेडमिक टेस्ट होते हैं, रीडिंग जिसको आप रीड करते हैं, रिसर्च पेपर्स हो गए, इसमें क्रिटिकल एसेस हो जाते हैं, मुख्तलिफ तरह कोई बुक हो जाती है, कुछ भी है, पोएम है, कुछ भी है, लिटरेचर का पीस ऑफ वर्क है, तो यू डू क्रिटिकल रीडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एकेडमिक टेक्स्ट, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि ये क्रिटिकल रीडिंग है। How can it be defined? It is the process of making judgments in reading, evaluating relevancy and adequacy for what is read. क्या है ये एक प्रोसेस है कि आप इसमें से इसको रीड करते हैं, इसमें डिफरेंट क्रिटिकली आप अपने माइंड में सोचते हैं, क्वेश्चंस रेज करते हैं, और फिर आप किसी जजमेंट पे जाते हैं कि ऑथर जो है उसमें क्या कहना चाह रहा है। आपको यूजुअली इंग्लिश में हम कहते हैं राइट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम, ठीक है। जब आपको कहा जाता है कि राइट द एनालिसिस ऑफ द पोएम, तो आप उसमें यूजुअली यू टेल कि व्हाट इज पोएट ट्राइंग टू से, व्हाट आर द हिडन मीनिंग्स इन द पोएम, यू सॉर्ट आउट डिफरेंट सिंबल्स, सिमिलेस, इमेजेस आप उसमें ढूंढते हैं, तो आप वो बताते हैं। वो क्या होती है, क्रिटिकल रीडिंग ऑफ पोएम होती है। आप ऑथर की जो हिडन मीनिंग्स हैं उसके, या जो इंटेंशन है उसकी हिडन, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसको हम क्रिटिकल रीडिंग कहते हैं।
इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज एन एक्ट ऑफ रीडिंग इन विच अ क्वेश्चन एटीट्यूड लॉजिकल एनालिसिस एंड इन्फेरेंस आर यूज्ड टू जज द वर्थ ऑफ व्हाट इज रेड अकॉर्डिंग टू एन एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। कि आप उसको इन्फर करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस रेज करते हैं और आप जज करते हैं उस पीस ऑफ टेक्स्ट को जो आपको दिया जाता है। द जजमेंट ऑफ वैलिडिटी, थर्ड डेफिनेशन क्या है? The judgment of validity of worth of what is read based on sound criteria of standards developed through previous experience। कि उसमें आप क्या करते हैं कि आप उसका जो है उसकी जजमेंट करते हैं थ्रू साउंड क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया बना लिया जाता है और उस क्राइटेरिया पर उस पीस ऑफ टेक्स्ट का आप जो है उसको देखते हैं या अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है वो आप उसको देखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को। सारी डेफिनेशंस बेटा दी हुई है पेज नंबर 5 पर। यू कैन सॉर्ट आउट आफ्टरवर्ड्स। आप इसमें से जब अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आप उसमें ये लिखेंगे सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, व्हाट इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं होता कि राइटर ने जो लिखा है, कोई आप फॉर इंस्टेंस कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि राइटर ने कोई बात झूठ बोली है। नो, उसमें डिफरेंट ये हो सकता है कि झूठ नहीं होता है, उसमें डिफरेंट लेयर्स, हिडन लेयर्स होती हैं उस टेक्स्ट में, जो कि आपने उसको एक्सप्लोर करना होता है, आपने देखना होता है, ठीक है। किसी भी आर्टिकल की या किसी भी जर्नल की क्रिटिकल रीडिंग जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसमें से असेस करते हैं उस वर्क की वैल्यू को। आप आर्टिकल जो है, रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर आपको दिया जाता है तो यू विल असेस द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल या रिपोर्ट, और आप बताएंगे क्रिटिकली इसको रीड करके कि ये मतलब ठीक है, ये पढ़ने के काबिल भी है कि नहीं, इसमें कुछ ऐसा है कि जो आपके लिए हेल्पफुल है कि आप उसकी क्रिटिकल रीडिंग करते हैं या नहीं है हेल्पफुल, ठीक है। कहते हैं कि एक जो एक्सपेक्टेशन होती है यूजुअली रिलेटेड टू क्रिटिकल रीडिंग्स, कि ये कहा जाता है कि नहीं हमने इसमें से क्रिटिकली रीड करना है, तो उसको हम मतलब उसको आप एकेडमिक राइटिंग पीस को आप थोड़ा सा समटाइम्स लोग को डाउन लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, उसको अंडरपिन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता क्रिटिकल रीडिंग में, आपने ऐसा नहीं करना कि आपने उसके फ्लॉज नहीं ढूंढने हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने रीजंस देनी है, कुछ एविडेंसेस के साथ उसको रीड करना है और फिर उसको रीड करके उसको क्रिटिकली उसके बारे में सोचना है। आपने हर रीडर ने, आप रीडर हैं अगर किसी चीज़ के, किसी टेक्स्ट के, आपने पॉइंट्स रेज करने हैं, अपने आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछनी है। आप कहेंगे कि हैव द राइटर्स गिवन मी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एक्सेप्टिंग दिस क्लेम, कि अगर राइटर कोई बात क्लेम कर रहा है तो आप देखेंगे क्या राइटर ने कोई सबूत दिए उस बात के कि वो बात आप उसको मान सकें, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस रेज करेंगे, ये होती है क्रिटिकल रीडिंग। ऐसे नहीं, आप इंक्वायर करते हैं, इंक्वायरी होती है, ठीक है। ये नहीं है कि इसमें आपने ट्रूथ ढूंढना है, बस इसमें आपने यू फाइंड आउट द व्यू पॉइंट्स, ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। व्हाट इज द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑथर, कि राइटर जो है उसका व्यू पॉइंट क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि वो जो बात कर रहा है तो उसकी क्या वैल्यू है उस बात की, आप ये देखेंगे, ठीक है। इसमें आप यही होता है कि ये इसी इसी तरह से हो सकता है कि आप सोचें उसके बारे में सोचें कि वो जो क्लेम्स हो रहे हैं, जो सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं टेक्स्ट में, क्या वो आपको सेटिस्फाई करते हैं, क्या वो राइटर को सेटिस्फाई करते हैं। आपने इस बारे में सोचना है कि कोई बात जो क्लेम की जा रही है किसी एसे में, किसी आर्टिकल में, तो डज इट सेटिस्फाई यू, डज ऑथर गिव डिफरेंट एविडेंसेस टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट, कि जो आर्ग्यूमेंट जो है ऑथर दे रहा है, क्या उसमें इतने एविडेंसेस वो दे रहा है ऑथर कि अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करे। आपने ये जो है ये इसमें देखना होता है क्रिटिकल रीडिंग में। कहते हैं कि इसमें आपको रीजनेबली स्केप्टिसिज्म, यानी कि आपको स्केप्टिक होना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, चीज़ों को डाउट करके सोचते हैं आप, ठीक है। आपको ओपन माइंडेड होना पड़ता है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा कन्विंस्ड होना चाहिए कि आप ऑथर की बातों से कन्विंस भी हों कि अगर वो जो बात कर रहा है, वो जो क्लेम कर रहा है बातें, क्या उसकी बातों को वो जो है सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट एविडेंसेस या नहीं, ठीक है। आपने एक बैलेंस क्रिएट करना होता है एक्सपेक्टेशंस के बीच में और जो आप एक्सेप्ट करते हैं उसमें, कि आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन आपको एक्सेप्ट कुछ और करना पड़ता है, ठीक है। कि आप कुछ पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वही बात हो जो आप सोच रहे हो या जो आपको अपेरेंटली लग रही हो। अगर आप क्रिटिकल रीडर हैं तो आप उसको जिस तरह से पढ़ेंगे तो आपको उसमें कोई न्यू मीनिंग्स, हिडन मीनिंग्स आपके सामने आएंगे, आपने वो इंटरप्रेट करने हैं।
ठीक है, आपने उनको देखना है, आपने उनको एनालाइज करना है। ठीक है, जो एक अच्छा राइटर होगा वो कोई ना कोई सिग्नल ज़रूर देता है रीडर को कि वो कोई अच्छा कंक्लूजन उसमें से निकाल सके उस आर्टिकल में से। आप उस आर्टिकल में से कंक्लूड करते हैं व्हाट इज़ गिवन टू यू, और उसमें से अपना एनालिसिस करते हैं, उसमें से ढूंढते हैं कि एक क्रिटिकल रीडिंग के थ्रू कि उसमें एग्जैक्टली राइटर क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या है, एक बेसिकली स्किल चाहिए क्रिटिकल रीडिंग का। सिर्फ रीडिंग करके ये नहीं कि आप चीज़ों को समराइज कर लें, चीज़ों को देख लें, आपने बेसिकली उसके मीनिंग ढूंढने हैं क्रिटिकल रीडिंग के थ्रू कि उसमें क्या क्लेम की जा रही है, क्या बात हो रही है। ठीक है, कौन सी बात जो है राइटर ने डायरेक्टली कम्युनिकेट की है, कौन सी बात उसने पार्टली कम्युनिकेट की है, और कौन सी बात आपने खुद उसमें से इन्फर करनी है। ठीक है, खुद उसमें से ढूंढनी है। क्रिटिकल रीडिंग बेसिकली इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स कि आपके लिए एक्टिवली आप एंगेज हो 3 स्टेप्स के थ्रू। क्या है, डेवलपिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइटर्स आइडियाज। कि आपने क्या करना है, आपने क्रिटिकल रीडिंग के थ्रू द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर कि राइटर क्या का आइडिया क्या है, कि आप उसमें से अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज राइटर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। ठीक है, नंबर 2 इज दिस इज बेटा ऑन पेज नंबर 6। ठीक है, you can see it. Number 2 is questioning and evaluating the arguments and evidence provided to support those arguments. आपने क्वेश्चन करना है उन आर्ग्यूमेंट्स को, उनकी एवेल्युएशन करनी है। ठीक है, और आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एविडेंस, जो कि आर्ग्यूमेंट्स जो है जो राइटर दे रहा है, आपने उन आर्ग्यूमेंट्स को क्वेश्चन करना है, उनको एवेल्युएट करना है, और फिर देखना है कि राइटर ने कौन से एविडेंसेस दिए हैं इन सपोर्ट ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, फिर इन द एंड थर्ड स्टेप होता है जब यू फॉर्म योर ओन ओपिनियन, जब आप अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं उस पीस ऑफ राइटिंग के बारे में जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं, जिसकी आप क्रिटिकल रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्रिटिकल रीडिंग के लिए कुछ स्पेशल स्किल्स हैं जो कि आपको डेवलप करने पड़ते हैं। वो स्किल्स जो हैं वो बेटा हम आगे नेक्स्ट उसमें देखेंगे क्या होंगे। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द स्ट्रेटजीज और स्किल्स ऑफ द क्रिटिकल रीडिंग, you have to first thing what are the academic text जिनकी यूजुअली क्रिटिकल रीडिंग की जाती है, वो कौन से जॉनरास होते हैं जो कि क्रिटिकली रीड किए जाते हैं। समरी है जिस तरह से, एब्स्ट्रैक्ट है, एक रिव्यू होता है, कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट होता है, देन इज रिसर्च पेपर एंड देन इज ग्रांट प्रपोजल। ये जो है इनकी डेफिनेशन जो है एक टेबल में दी गई है, आपने डेफिनेशन को मैच करना है कि कौन सी डेफिनेशन जो है वो समरी है, कौन सी एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सी रिव्यू है, कौन सी कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट है, रिसर्च पेपर क्या होता है, ग्रांट प्रपोजल क्या है। ये आप इसमें से पॉइंट्स दिए गए हैं ABCDEF, आपने इनको मैच करना है इसके साथ। ये रैंडमली लिखे गए हैं, इसके आगे समरी के आगे जो ए लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसमें से आपने ढूंढनी है कि समरी कौन सी होती है। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे और आप कल मुझे बताएंगे अबाउट दिस। जो टेक्स्ट की क्रिटिकल एवेल्युएशन की जाती है उसमें क्या होता है, यूजुअली जो चीजें आती हैं, एक या तो एसे है। एसे क्या होता है, इट इज एन आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट दैट इज फ्रॉम अबाउट 1500 वर्ड्स टू 6000 वर्ड्स। फरा अली खान, बेटा म्यूट योरसेल्फ। देन इज रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर की हम क्रिटिकल रीडिंग करते हैं। it is longer essay which involve research in it, library research होती है, this is usually from 3000 to 6000 words. Then is research article, it is an essay written to be published in some journal. ये journal या conference paper में publish होने की के लिए अगर कॉन्फ्रेंस पेपर लिखा जाता है या आर्टिकल पब्लिश करने के लिए जो लिखा जाएगा दैट इज कॉल्ड रिसर्च आर्टिकल, हम उसकी क्रिटिकल रीडिंग करते हैं। डिसर्टेशन, डिसर्टेशन जो है ये भी एक लॉन्ग ऐसे होता है 6000 वर्ड्स से 20,000 वर्ड्स पे। ये भी क्या होता है, बेसिकली डिसर्टेशन थीसिस हम इसको कह सकते हैं, छोटा सा एक जो थीसिस लिखा जाए। फिर एक जो होता है थीसिस होता है, ये भी इसको टाइम लगता है काफ़ी करने में, रिसर्च करने में। 20,000 वर्ड्स बल्कि ज़्यादा होता है ये। PhD का एक थीसिस जो है तकरीबन 80,000 वर्ड्स का जिस तरह से होता है। तो थीसिस जो होता है ये भी रिसर्च जो है इसकी रिसर्च होती है, रिसर्च बेस्ड होता है, तो इसकी भी क्रिटिकल रीडिंग आप पढ़ सकते हैं। देन इज टेक्निकल रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट जिसमें दी गई हो, जिससे आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जिसमें कोई बताई गई हो, कोई साइंटिफिक रिसर्च दी गई हो, कोई प्रोसेस बताया गया हो किसी रिपोर्ट में, उसकी क्रिटिकल रीडिंग कर सकते हैं। देन इज रिसर्च प्रोजेक्ट,
जो होती है उसकी आप कर सकते हैं। कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट है किसी का, उसकी क्रिटिकल रीडिंग होती है। देन इस कोर्स बुक जिसकी क्रिटिकल रीडिंग की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, these are the things which can be critically analyzed. Okay, then is what is a research paper या term paper? एक research paper जो होता है बेटा वो usually few pages से 30 pages तक वेरी करता है, ठीक है। उसके स्टाइल पे डिपेंड करता है। कभी APA स्टाइल, एक है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, कुछ रिसर्च पेपर उस स्टाइल में लिखे जाते हैं। लिटरेचर वगैरह के या दूसरे जो MLA एक फॉर्मेट होते हैं, ये बेसिकली APA फॉर्मेट और MLA फॉर्मेट, कि किस तरह आपने टाइप करना है उसको, रिसर्च पेपर को किस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो लेकिन एक रिसर्च पेपर यूजुअली क्या है, जब रिसर्च की जाती है उसमें डिफरेंट बुक्स चूज की जाती हैं, आर्टिकल्स चूज किए जाते हैं, उस पर उसका लिटरेचर रिव्यू लिखा जाता है। आप कोई भी रेफरेंस जब देते हैं रिसर्च पेपर में, एंड में जो है वो रेफरेंसेस कोट किए जाते हैं। रिसर्च पेपर्स में इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, और कुछ पैराग्राफ्स शॉर्ट होंगे, कुछ लॉन्ग होंगे पैराग्राफ्स। एक थीसिस स्टेटमेंट होती है, इससे आपको आपका रिसर्च पेपर का टॉपिक और ये पता चलता है कि उस थीसिस स्टेटमेंट में आगे रिसर्च पेपर में क्या बात की जा रही है, किस बात पर जो है आर्गुमेंटेशन रिसर्च पेपर में की जाएगी। आप इजीली उसके टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन दी जाती है बिब्लियोग्राफी में, ठीक है, वो आप उधर से देखते हैं, वहाँ से आप आइडियाज ले सकते हैं उन सोर्सेज के थ्रू जो बिब्लियोग्राफी में दिए जाते हैं। फिर क्या कंक्लूजन होता है, जिसमें तमाम जो मेन आइडियाज होते हैं उनको रीस्टेट किया जाता है और कंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी राइटिंग होगी, रिसर्च राइटिंग होगी, यू आर गोइंग टू डू द क्रिटिकल रीडिंग। आप इसकी ऐसी किसी भी चीज़ की क्रिटिकल रीडिंग जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिएगा पेज नंबर 9 पर आपको एक दिया गया है 1.4 टास्क की एक रिसर्च पेपर दिया गया है। आपने इस रिसर्च पेपर को पढ़ना है, ठीक है, और इसमें आपने जो है इसको देखना है और इसकी क्रिटिकल रीडिंग करके बताना है कि इसमें क्या बात की जा रही है, ठीक है। या कल, ये आपका टास्क है कल का, कल आपने ये चीज़ मेरे साथ डिस्कस करनी है। मैं आपके साथ ये रिसर्च पेपर डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज बीइंग सेड इन दिस रिसर्च पेपर। ये 3-4 पेजेस का मेरा हाल रिसर्च पेपर है। इसके पीछे जो है वो भी दिए हुए हैं, रेफरेंसेस भी हैं एंड पर, और इसके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कुछ, ठीक है। और उसमें बताया, डिस्कशन में बताया गया है कि किस तरह से आपने इसको रीड आउट करना है। ये मैं आपसे कल डिस्कस करूंगी। आपने इसकी खुद से रीडिंग करनी है कल, और कल आप मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों से पूछूंगी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रिसर्च पेपर, ठीक है। This was a bit of introductory lecture on critical reading. Anything which you don't understand, you can unmute yourself and you can ask me. आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी समझ नहीं आया। You have to be quick. Okay, no questions then. Understood everything. You can tell me by unmuting yourself or in the message. ठीक है बेटा, आप इस जो हैंडआउट दिए हैं इसको कल आप पेज नंबर 12 तक इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम उससे आगे जो है मैं पढ़ूंगी, आप इसका आपका डिस्कस करूंगी। इसमें जो क्वेश्चनिंग, इस जो रिसर्च आर्टिकल दिया गया है आपको टास्क के तौर पे कि इसकी क्रिटिकल रीडिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हाउ टू डू द क्रिटिकल रीडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, एनीथिंग जो आपको लगे कि यू नीड टू डिस्कस, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप एज वेल। वी कैन डिस्कस इस टुमारो अगेन, ठीक है। Okay, then see you tomorrow at 9 a.m. sharp. बेटा बी ऑन टाइम एग्जैक्टली। आप 5 मिनट पहले ऑनलाइन हुआ करें ताकि जो है हमारे लिए जो है एग्जैक्टली टाइम पे हमारा जो है स्टार्ट हो जाए। सबाहत, आपने कुछ पूछना है बेटा? ओके, नो, फाइन, चलिए ठीक है। कल हम जो है नेक्स्ट स्ट्रेटजीज की तरफ चलेंगे जो इसकी होती है क्रिटिकल रीडिंग के लिए। उससे पहले वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस रिसर्च आर्टिकल और क्रिटिकल रीडिंग कैसे की जा सकती है। चलिए, सी यू टुमारो देन, अल्लाह हाफिज़।